So for the retirement benefits, we have so far discussed gratuity, we have discussed pension, we have discussed provident funds. Okay. So this is one more retirement benefit scheme which is known as superannuation fund, and it is given under section 1013. So this fund is usually established under trusts by an undertaking for the purpose of providing annuities. Annuities आप समझते हो, this is the fixed amount which is given after the employee gets retired. So annuities etc. to the employees of the undertaking on their retirement at or a specified age, or on their becoming incapacitated prior to such retirement, or for the widows, children or dependent of the employees in case of any employee's earlier death. Okay, so this is also one kind of a scheme in which the employer and employee both contribute to that particular superannuation fund, and this fund is usually contributed under a trust which is established under this particular kind of a fund which is already given in the law कि आपके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जाता है उस फंड में, और जब वो रिटायर हो जाता है या एनी मिस हैपनिंग हैपेंड विद हिम या कुछ भी अगर ऐसा केस हो जाता है तो वो रिटायरमेंट से पहले भी मिल जाता है. And this superannuation fund is also for those employees in case where the service period of the employee is predefined by the employer while signing the contract of employment. कि पहले से ही उसने contract of employment में लिख दिया है कि this is the particular period और इस period तक ही आपकी job है. After that when you resign or you retire from after you like terminate from your employment, उसके बाद वो जो stage है that is called a superannuation stage. And even if the employee's age is before 60 which is a normal retirement age, तब भी हम उसको superannuation age कह देते हैं. ठीक है, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए is issued a commercial pilot license for aircraft for a period of 14 years. ठीक है, उसके पास commercial pilot license था 14 years के लिए. And when he joined the services of SpiceJet at the age of 25 years, तो उसके 14 years अगर आप add up कर दोगे तो 39 years के बाद he has to leave his job because his license is expiring. ठीक है, तो जैसे ही license expire अगर हो रहा है तो he have to leave his job, and that particular stage is called as the superannuation. और उसी स्टेज को आप रिटायरमेंट भी कह दोगे क्योंकि उसके पास नहीं है, इससे ज्यादा वो लाइसेंस नहीं कर सकता तो ही कैन नॉट फ्लाई. तो ये जो लाइसेंसिंग वाली चीजें होती हैं जिसमें भी कोई चीज पहले ही प्री डिटर्मिन्ड हो जाती है कि आपका इतना ही टेन्योर के लिए सर्विस रहेगा, तो वहां पे आपका यूजुअली कंसेप्ट सुपरएन्युएशन फंड आ जाता है. एंड दिस इज जस्ट द नेम. एज सच इसका ट्रीटमेंट में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है. इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की तरह जाता है व्हेन इट इज अप्रूव्ड, और इसका अनरिकॉग्नाइज्ड की तरह जाता है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की तरह जाता है व्हेन इट इज नॉट अप्रूव्ड. So this is the only change in the name. ठीक है, so the trust invests the money contributed to the fund in the form and mode prescribed by the IT Act. जैसे आपका सुपरएन्युएशन फंड है, जिस तरीके से इन्वेस्ट करना है, क्या प्रोसीजर रहेगा, एवरीथिंग इज pre-defined. And for the tax purposes there are two types of superannuation fund. So one is approved and the other one is unapproved. So वही approved कौन सा fund हो गया आपका, which is approved by the Commissioner of Income Tax in accordance with the rules set out in Part B of the 4th Schedule of Income Tax Act. तो अगर आपका Commissioner of Income Tax approve करता है तो it becomes a approved superannuation fund. Similarly अगर वो disapprove करता है तो it will become an unapproved superannuation fund. So tax treatment on approved superannuation fund देखना, this is entirely similar to your not so recognized provident fund. Normal जो आपका provident fund होता है ना, statutory provident fund, उसकी तरह है ये. आपका जो employee का contribution है वो 80C में है, employer का contribution है that is maximum 1.5 लाख तक का आपका exempted है, उसके बाद it is taxable. Then interest is also exempted and payment out of superannuation fund is also exempted. ठीक है, so खाली employer में ये एक monetary ceiling है, उसके अलावा और ये 1.5 लाख usually आपकी सब में ceiling होती है. It is the same with your superannuation fund also.
कि यहाँ पे 1.5 लाख तक की सीलिंग है, उसके अलावा अगर आप कुछ उससे ज्यादा करोगे तो इट विल बी टैक्सेबल। इंटरेस्ट फुल्ली टैक्स एग्जेम्प्ट है, पेमेंट आउट ऑफ एसएएफ इज टैक्स फ्री एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज अलाउड टू बी रिड्यूस्ड अंडर सेक्शन 80C। तो ये आपका टैक्स ट्रीटमेंट है सुपर एनुएशन फंड का, एंड दिस इज फॉर अप्रूव्ड, ओके। In which all criteria where the payment of superannuation fund is exempted, so these all are the conditions in which it will entirely be exempted. So एक तो हो गया आपका, अगर in case the beneficiary means the person for whose benefit this contribution is being made, वो अगर expire हो जाता है, या फिर to any employee in lieu of or in commutation of an annuity on his retirement at or after a specified age or on his becoming incapacitated prior to such retirement. It means अगर वो कुछ भी कम्यूट करा लेता है अपनी एन्युटी पेंशन, जैसे आपका पेंशन का होता है ना कि फिक्स्ड अमाउंट आपको हर महीने मिलता है, और अगर आप उसको कम्यूट करा लेते हो देन इट विल बिकम टैक्स फ्री, but that is only in case of central government and state government employees. But in this particular case, अगर आप commute करा लेते हो, तो it will become tax free by way of refund of contribution to on the death of beneficiary. अगर कोई refund आ रहा है contribution का जो बना already employee दे चुका है, उसका कोई भी refund आ रहा है, तो that is also tax free, that is exempted in case the beneficiary expires. Then by way of refund of contribution to an employee on his leaving the services in connection with which the fund is established, otherwise than by retirement at or specified. तो अगर किसी भी तरीके से if he retires even before the retirement age, then कोई भी refund होता है जो contribution का जो मिलता है employee को, that will be exempted. And the last one, by way of transfer to the account of the employee under a pension scheme referred to under section 80CCD and notified by the central government. मतलब अगर आपके अकाउंट सुपर एनुएशन फंड में कुछ बैलेंस था और आप उसको ट्रांसफर करा रहे हो अपने 80CCD, ये आपका कौन सा सेक्शन है, डिडक्शन मिलती है इसमें व्हेन द एम्प्लॉयर इज कंट्रीब्यूटिंग टू द पेंशन सिस्टम, तो उसमें अगर कुछ भी आप ट्रांसफर करा रहे हो तो वो भी आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा. So इस particular topic से you will not get any practical question. This is more from the theoretical background and that is also very least important from the examination point of view. आपका सुपर एनुएशन फंड कभी भी एग्जाम्स में नहीं आया है और इसका कभी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी नहीं आता है. सो मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए नोट्स में लिख दिया है सो दैट यू कैन जस्ट टेक अ रीड इन केस एनीथिंग कम्स अप इन द एग्जाम, बट ये बहुत ही रेयर कभी आ सकता है तो आ सकता है, अदरवाइज इट इज नॉट मच इम्पोर्टेंट. इसका जो विड्रॉल है दिस इज सेम एज योर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एंड रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. सो जो भी कंडीशंस लिखी हुई हैं इन दोनों के केस में, जो आपका हमने बताया था ना कि अगर आप इन केस बिफोर रीचिंग द रिटायरमेंट अगर आप पार्शियल विड्रॉ करा रहे हो तो इट इज सेम एज इट इज फॉर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एंड रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. ठीक है, जो भी आपकी कंडीशंस उसमें लिखी हुई थी कि मिनिमम 5 इयर्स की सर्विस होनी चाहिए, क्या क्या और कंडीशंस होनी चाहिए, तो वो सारी कंडीशंस आपकी सेम है. ठीक है, सो दिस इज योर सुपर एनुएशन फंड. नेक्स्ट आता है आपका रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन. दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10B. रिट्रेंचमेंट क्या होता है? रिट्रेंचमेंट इज बेसिकली द टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस बाय द एम्प्लॉयर ऑफ अ वर्कमैन फॉर एनी रीजन other than a punishment imposed by way of disciplinary action. मतलब वर्कमैन ने कुछ भी, एम्प्लॉय ने कुछ गलत नहीं किया है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन के अंडर उसको टर्मिनेट नहीं किया है, उसके अलावा कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से उसके सर्विसेज को टर्मिनेट किया गया है. ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज में ऐसा कुछ भी नहीं था. ही वाज एम्प्लॉयड ऑन अ fresh post, but due to any circumstances if the employer has to terminate his services, then this process is called the retrenchment. और इस process के under the employer has a liability that they have to financially compensate the employee because he has incurred a loss due to that. उसका बीच में तुमने प्रीमेच्योर टर्मिनेट कर दिया तो उसका बहुत फाइनेंशियल लॉस होता है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए आपका एम्प्लॉयर उसको कुछ पैसे देता है एंड दैट पैसे इज कॉल्ड एज द रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन. ठीक है, सो इसका एग्जेम्पशन कैसे है आपको? एग्जेम्पशन इज अवेलेबल अंडर सेक्शन दिस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बाय वर्कमैन अंडर आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंडर, वो एम्प्लॉय हो या एनी अदर एक्ट और रूल्स, एनी ऑर्डर और नोटिफिकेशंस इशूड देयर अंडर.
इस सेक्शन के अंडर अगर कुछ और अदर एक्ट्स हैं या रूल्स हैं, कोई भी ऑर्डर्स नोटिफिकेशन है, या फिर एनी स्टैंडिंग ऑर्डर्स और अंडर एनी अवार्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सर्विसेज और अदरवाइज. सो दीज थ्री आर द टर्म्स ऑफ योर लॉ कि जो जो एम्प्लॉयज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंडर आते हैं, या कोई भी रूल्स रेगुलेशंस एक्ट्स या कुछ भी ऑर्डर्स हैं उसके अंडर, तो वो सारे आपके अगर फॉलो होते हैं तभी जो उसका कंपनसेशन है दैट विल बी अलाउड टू बी एग्जेम्प्टेड. ओके, so these things are not in detail much. In case question comes up, तो you have to write it as it is. But retrenchment compensation भी usually नहीं आता है पेपर में, but still there is a possibility that it might come. ठीक है, तो ये बस आप लोगों को सिर्फ लिखना है, क्योंकि यूजुअली आपका जो लॉ होता है इट इज ओपन एंडेड. काफी बारी चीजें ऐसे लिख दी जाती है कि इट मे बी इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और अगर कुछ उस टाइम पे हुआ, कोई भी अगर वहां पे रूल हुआ, कोई एक्ट हुआ, कोई ऑर्डर हुआ, तो वो भी अबाइड होगा. तो यूजुअली ऐसी स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं विच आर ओपन एंडेड. ठीक है, तो ये वैसी ही स्टेटमेंट्स है. Then an amount of exemption available under section 10B is lower of what? The amount of retrenchment compensation received, that is the actual amount of compensation that the employee has received. Then next is the amount specified by central government. So present it is 5 lakh. So maximum is 5 lakh. And the third one is 15 by 26 into salary into completed years of service plus fraction if in excess of 6 months. तो अगर आप ये देखो तो ये सेम है आपका व्हेन ग्रेचुइटी एक्ट इज एप्लीकेबल, बिल्कुल सेम है. The only difference you will find is the difference in the definition of salary. In this case, it is salary for retirement benefit. उसमें क्या होता है? बेसिक सैलरी प्लस डीए, कोई रिटायरमेंट वाला चीज नहीं होता. बट इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज ओनली salary for retirement benefit, and that too for 1 month immediately before the retirement. So ये जो immediately before the retirement है, ये भी आपका gratuity से linked है, तो खाली definition salary की बदल रही है, that now it is salary for retirement benefit. Apart from that, every other thing is same in this formula. So actual amount maximum 5 lakh, and whatever you will find the amount by using this formula, आपकी रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन को आप जो भी लीस्ट होगा, जो एक्चुअल होगा, उसमें से माइनस करके आप अमाउंट निकाल सकते हो. ठीक है, सो इसमें से भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यूजुअली नहीं आते हैं, आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आ सकता है. सो दोनों स्कीम्स क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछो प्लीज. एनी डाउट्स टू एनीवन? सुपर एनुएशन बताना जरा. सुपर एनुएशन फंड, बेटा सुपर एनुएशन जो फंड है उसका बेसिकली ट्रीटमेंट कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है. सुपर एनुएशन फंड यूजुअली जैसे आपके बहुत रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, तो समटाइम्स व्हाट द एम्प्लॉयर डू, कोई और बेनिफिट ना दे के आपको सुपर एनुएशन फंड दे सकता है. तो अगर मैं नॉर्मल मीनिंग बताऊं आपका सुपर एनुएशन फंड का, वो यही होता है कि इन केस जब आपका सर्विस जो पीरियड होता है वो पहले से ही प्री डिटर्मिन्ड होता है. जैसे रिटायरमेंट तो आपकी 60 इयर्स की एज की होती है, या 62 की होती है, किसी में 65 की होती है. सुपर एनुएशन फंड होता है कि आपको, आपने पर्टिकुलर ड्यूरेशन किसी कंपनी के साथ काम किया है, वो फिक्स था, उस फिक्स के बाद जब आपने उसको छोड़ना पड़ा है, आपकी टर्मिनेशन हुई है, तो जो भी वो जो फंड बनाया था उस फंड को सुपर एनुएशन फंड कहते हैं. इसका बस नाम ही अलग है. जैसे आपके डिफरेंट डिफरेंट फंड्स होते हैं, सबके नाम अलग होते हैं. आप जैसे देखो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड था आपका, उसमें भी आपकी कंपनी इन्वेस्ट करती है. जैसे आप, मैं अगर आपको नॉर्मल मीनिंग बताऊं ना, सुपर एनुएशन फंड में ये सारे इंक्लूडेड होते हैं. आपके सुपर एनुएशन फंड में दो फंड्स होते हैं, आपके डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स और एक होते हैं आपके डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान्स. डिफाइंड बेनिफिट वो प्लान्स होते हैं जिसमें जो एम्प्लॉयर होता है, इसमें आपकी ग्रेचुइटी और पेंशन आ जाती है, प्रोविडेंट फंड आ जाते हैं. आपके जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स होता है, इसमें आपका एम्प्लॉयर क्या बोलता है कि वो प्रॉपर ऑब्लिगेशन होती है उसकी कि जब मेरा एम्प्लॉय इतने साल बाद रिटायर होगा, जैसे आज मैंने उसको ज्वाइन किया, तो आज के डे पे ही जैसे मैंने उसको ज्वाइन किया, तो वो कैलकुलेट करता है कि अगर ये एम्प्लॉय मेरे साथ 20 साल भी रहता है, या 60 इयर्स ऑफ एज तक रहता है, पूरी रिटायरमेंट तक, तो मुझे इसको इतना कंट्रीब्यूट करना है मुझे
इतना उसको कंट्रीब्यूट करके कैसे हमारी कितनी ऑब्लिगेशन हो जाएगी व्हेन ही रीच द रिटायरमेंट एज, और वो ऑब्लिगेशन वो आज के डेट में कैलकुलेट करके रखता है, जिससे उसको ये पता होता है कि इसकी फ्यूचर ऑब्लिगेशन क्या होगी एम्प्लॉयर की। उस फ्यूचर ऑब्लिगेशन को करने के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये आपका डिफाइंड बेनिफिट होता है। बट स्लोली एंड स्टेडली मेनी कंपनीज आर मूविंग फ्रॉम डिफाइंड बेनिफिट टू कंट्रीब्यूशन। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान्स क्या होते हैं, उसमें यूजुअली क्या होता है कि सिर्फ कंट्रीब्यूट करते हैं, ऑब्लिगेशन नहीं लेते हैं कि हम एंड में उनको इतना पे करना है, उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं। जैसे रिटायरमेंट ग्रेचुइटी को छोड़ के अगर आप प्रोविडेंट फंड देख, जो अगर एम्प्लॉय का रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, या उसके अलावा अगर आप पेंशन देखो, तो आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल 20 साल बाद मुझे इसको 20 लाख रुपए देने हैं। ठीक है, ये ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉयर कि इसके बाद इनको 20 लाख रुपए देने, तो मैं कैसे इन्वेस्ट करूं कि इतने साल बाद मेरे पास 20 लाख रुपए मेरे पास होने चाहिए। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में क्या होता है कि एम्प्लॉयर की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि जब रिटायर होगा तो मुझे उसको कितना पैसा देना है, कैसे देना है। वो क्या करता है, वो कंट्रीब्यूट करता है कि 10% मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, 10% तू कंट्रीब्यूट कर दे, हम फंड में करेंगे, उसके बाद जब तू रिटायर होगा तो उस फंड से निकालकर हम दे देंगे। तो उसकी कोई पर्सनल ऑब्लिगेशन नहीं होती इसमें एम्प्लॉयर। तो आपका सुपर एनुएशन फंड इज दी, ये इसका सबसे बड़ा पार्ट होता है, इसमें दोनों इंक्लूडेड होते हैं, आपके बेनिफिट्स भी आपके। बट आप लोगों की नॉलेज के लिए बस ये है कि अगर कोई ऐसा फंड है विद दिस नेम सुपर एनुएशन फंड, और इस फंड में ऑलरेडी प्री डिफाइंड है कि दिस इज दी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, इसके बाद अगर एम्प्लॉय रिटायर होता है तो भले ही वो 60 तक ना पहुंचाओ, इस केस में यही आ रहा है ना कि टर्मिनेशन आपका रिटायरमेंट से पहले हो रहा है, तो वट एवर कॉन्ट्रीब्यूशन द एम्प्लॉयर इज मेकिंग, जो वो कॉन्ट्रीब्यूशन उसको मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड द सुपर एनुएशन कॉन्ट्रीब्यूशन। वो वर्ड एक सुपर एनुएशन डाल दिया जिससे हमेशा सबको क्लियर करे, मतलब हो कि ये फंड इज नोन एज सुपर एनुएशन फंड। सो इसमें इतना डीप में जाना ही नहीं है आप लोगों को, क्योंकि ये एक्चुअल में अगर ये वर्ड देखा जाए तो इट इज वेरी मच वाइडर एज कंपेयर टू दी ऑल अदर फंड्स। बट इंडिया में स्पेसिफिकली, इंडिया में इसको बहुत छोटा एक नॉर्मल डेफिनेशन से एक्सप्लेन किया गया है कि बस ये एक रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है, इस नेम से है, और अगर किसी भी ट्रस्ट में अगर कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसमें अगर एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो चाहे वो रिटायरमेंट एज तक पहुंचे या पहले ले, या फिर उसकी डेथ हो जाए, या फिर वो डिसेबल हो जाए, तो किसी भी केस में अगर कुछ कंट्रीब्यूशन मिलता है तो वो आपका सुपर एनुएशन फंड ही है। ठीक है, तो ये जो ऊपर का फर्स्ट पैराग्राफ है ना, ये वाला आपका बिल्कुल सेम है जो आपके लॉ में गिवन है। तो अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो डेफिनेशन रिटायरमेंट बेनिफिट्स की दूसरी डेफिनेशन की तरह भी सेम ही है, राइट? ये बस रिटायरमेंट बेनिफिट है, जैसे आपका प्रोविडेंट फंड होता है ना जिसमें रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड मैंने बोला था, बिल्कुल सेम आपका सुपर एनुएशन फंड होता है। इट्स जस्ट दैट द नेम इज डिफरेंट, क्योंकि प्रोविडेंट फंड में आपका कमिश्नर ऑफ प्रोविडेंट फंड भी आता है, सुपर एनुएशन फंड में कोई कमिश्नर नहीं है प्रोविडेंट फंड का, ये ट्रस्ट के अंडर मेंटेन होता है जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, ये जो डेफिनेशन दी थी मैंने, ये आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझाते हुए दी थी कि इन केस आपके क्वेश्चन में ऐसे मेंशन है कि रिटायरमेंट से पहले ही इज रिजाइनिंग और उसके बाद देयर इज सो मच फंड विच इज अवेलेबल इन हिज नेम, और वो फंड जितना इसने कंट्रीब्यूट किया था, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया था, तो वो अगर हम उसको दे रहे हैं और उसका नाम सुपर एनुएशन फंड है, तो उसका ट्रीटमेंट आप सुपर एनुएशन फंड की तरह करोगे, क्योंकि हर फंड का नाम सुपर एनुएशन होगा। सुपर एनुएशन है, प्रोविडेंट है, ग्रेचुइटी है, हमेशा नेम मेंशन होता है। कभी भी आपके क्वेश्चन में ऐसा नहीं आएगा कि सिर्फ एक फंड है और आपको डिसाइड करना है वेदर इट इज अ प्रोविडेंट फंड और इट इज अ सुपर एनुएशन फंड, हमेशा क्वेश्चन में मेंशन होगा। सो these two points are only for your understanding point of view and this is taken from your law। जो आपका इनकम टैक्स लॉ है उसमें इसकी डेफिनेशन इस तरीके से लिखी है। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट भी बहुत सिंपल है। इसका ट्रीटमेंट यही है कि एम्प्लॉय का तो डिडक्शन मिल जाएगा एटीसी में, एम्प्लॉयर का भी डिडक्शन, एम्प्लॉयर का एग्जेम्प्ट हो जाएगा 1,50,000। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 2 लाख कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो 1.5 लाख तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 50,000 उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट है, और जो भी पेमेंट आप निकाल रहे हो सुपर एनुएशन फंड से वो भी एग्जेम्प्ट है। किस किस केसेस में, मैंने केसेस आपको बता दिए थे। ठीक है, और जो आपका पार्शियल विड्रॉ है बिल्कुल आपका प्रोविडेंट फंड की तरह सेम है।
जो आपका स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है. इट इज जस्ट दैट द नेम इज बीइंग रिप्लेस्ड नाउ, और नेम से थोड़े बहुत ट्रीटमेंट बदल गए हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग इज डिफरेंट. बट अगर मैं आपको नॉर्मल, अगर मैं वैसे इसका डेफिनेशन बताऊं तो इसमें आपका पेमेंट, ग्रेचुइटी, पेंशन, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन सुपरएनुएशन फंड. अगर आप ग्लोबल मीनिंग देखो ना इसका, तो इसके दो पार्ट होते हैं आपके, डिफाइंड बेनिफिट और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, और उन दोनों को मिला के आपका सुपरएनुएशन फंड बनता है. ठीक है. तो आप लोगों को डिटेल में जाना ही नहीं है, आप लोगों को इतना यूज करना ही नहीं है इसको. अगर थ्योरी में आए तो देख लेना, अदरवाइज इट इज वेरी लीस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इसको बस पढ़ लेना, इस पे ज्यादा टाइम मत स्पेंड करना. क्लियर है सबको ये? किसी को डाउट है और? क्लियर है पंकज, तुम्हें क्लियर है ये पॉइंट? अब क्लियर. चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इज वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम एंड इट इज गिवन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C. तो ये आ सकता है. इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट there can be a good chance that this can come in your paper. So it is important to know that any amount receivable by a specified category of an employee under voluntary retirement scheme or under the voluntary separation scheme is exempted under section 10 subsection 10C of your income tax act before the normal age of retirement. So normal age retirement हमें पता है, ठीक है, it is usually 60. In some cases only it is 62 or 65. So अगर कोई भी अपनी रिटायरमेंट से पहले वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेता है, so उस केस में आपका जो सेक्शन 10(10)(c) है वो कहता है कि there will be certain amounts which are exempted. ठीक है. So provisions of section exempt any compensation received at the time of voluntary retirement or voluntary separation or termination of service provided that all the conditions are satisfied. So जो नीचे आपकी तीनों conditions हैं, तीनों की तीनों conditions अगर satisfied हैं तो आपको BRS कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, दैट विल बी एग्जेम्प्टेड. ठीक है. So first is the compensation should have been received at the time of voluntary retirement or termination of service. कि at the time मिलना चाहिए, जब आप रिटायरमेंट ले रहे हो उस टाइम अगर आपको कंपनसेशन मिल रहा है तो वो उस टाइम आपका एग्जेम्प्ट होगा. पब्लिक सेक्टर कंपनीज में वो वॉलंटरी सेपरेशन के टाइम पे आपका यूजुअली, बाकी कंपनीज में वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है और इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इट इज कॉल्ड एज वॉलंटरी सेपरेशन. सो इट इज जस्ट द डिफरेंस इन नेम, और कुछ नहीं है कि हर जगह PSUs के केस में वॉलंटरी सेपरेशन यूज होगा और वॉलंटरी रिटायरमेंट आपके अदर केसेस में यूज होगा. तो फर्स्ट केस है हमारा कि कंपनसेशन शुड बी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ. दूसरा है the compensation should have been received by specific categories of an employee. So there are various lists, categories of employees which are given in a particular list for whom this will be exempted. जिसमें आपकी पब्लिक सेक्टर कंपनीज आ गई, आपकी लोकल अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज, IIMs, IITs, including your banks, railways, and many more. So there is a proper list in which it has been specifically mentioned that only these categories of the employee will be allowed to exempt their compensation received out of voluntary retirement scheme. ठीक है. उसके बाद थर्ड कंडीशन है आपकी that compensation should have been received in accordance with the scheme of voluntary retirement, or in case PSU, so it will be in accordance with the scheme of retirement separation. So जो भी compensation मिल रहा है that should be as per the scheme which is already there in your law, कि इस scheme में ये आपके प्रोविजंस होंगे, ये आपके रूल्स होंगे, ये होंगे. अगर कुछ भी है तो जो स्कीम के अंडर है उस स्कीम के अंडर में ही जिस तरीके से कंपनसेशन है, जैसे आपके कंपनसेशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि दिस विल बी द मैक्सिमम कंपनसेशन एंड दिस इज द फॉर्मूला. सो एवरीथिंग शुड बी इन लाइन विद द स्कीम ऑफ दिस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम. जो भी उसमें लिखा हुआ है उसी के अंडर आपका अगर कंपनसेशन है तभी वो कंपनसेशन आपका एग्जेम्प्ट होगा.
So should be at the time of retirement, it should be only for the specified categories of the employee, or should be in accordance with the scheme. So these are the three main conditions which are to be satisfied before claiming an exemption for any compensation received under VRS. ठीक है, ये कंडीशन समझ में आ गई. इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन अवेलेबल अंडर सेक्शन 1010C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. सो मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितनी है? द एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और 5 लाख रुपीज, विच एवर इज लोअर. ठीक है, एक तो एक्चुअल अमाउंट और INR 5 लाख, दिस इज द मैक्सिमम. अब आता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड. एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड में भी देयर आर सर्टेन कंडीशंस कि आप एक्चुअल अमाउंट भी यूं ही नहीं दे दोगे अपने एम्प्लॉइज को. इट शुड नेवर एक्सीड. क्या नहीं एक्सीड करना चाहिए? फर्स्ट, द अमाउंट इक्वल टू 3 months ऑफ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस. तो जो भी आपकी बेसिक सैलरी है, सैलरी इसमें है, सैलरी आपकी बेसिक सैलरी, DNS अलाउंस, forming part of retirement benefits and commission. So it is basically salary for retirement benefit. तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है सैलरी जो आपकी रिटायरमेंट बेनिफिट है, 3 months of salary for each completed. So it is 3 into your salary into each completed years of service. ठीक है. नेक्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है? यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट विच इज इक्वल टू सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, कि उस टाइम पे आपकी सैलरी कितनी थी, इनटू बैलेंस मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट और सुपर एनुएशन. कि आपका जैसे फॉर एग्जांपल आपकी रिटायरमेंट एज थी 30 और आपने 40 में मतलब आपकी 60 थी रिटायरमेंट एज और आपने 40 में रिटायर कर दिया. तो जो आपका ये 20 इयर्स है, दिस इज द बैलेंस ईयर, राइट? ये बच रहा था आपका इतने साल, तो इतने साल की बची हुई भी आप सैलरी निकालोगे. फॉर एग्जांपल आपका सुपर एनुएशन हो जाना था 40 इयर्स की एज में, बट आप फॉर एग्जांपल 30 इयर्स में ही आपने VRS ले लिया, तो आपके बचे कितने? 30 - 40, इट इज 10 इयर्स. तो इस तरीके से पहले तो आपको निकालना है 3 months की सैलरी विद ईच कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस, और दूसरा आपको निकालना है सैलरी कितनी बची है उसकी जो उसको मिल सकती थी अगर वो VRS नहीं लेता तो. ठीक है. सो फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट टिल हिज नॉर्मल एज ऑफ रिटायरमेंट और सुपर एनुएशन, वट एवर द केस, उस बैलेंस के लिए ऑल्सो यू आर कैलकुलेटिंग. और सैलरी इज योर सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स. सो व्हाट ऑल आर द गाइडलाइंस विच आर प्रिस्क्राइब्ड. सो गाइडलाइंस क्या है एग्जेम्पशन की आपके लिए? सो इट विल बी VRS is framed by the company, authority, cooperative society, university, institute satisfying the below criteria prescribed under Rule 2BA. So what all are the conditions? The scheme applies to an employee who has either completed 10 years of service or has completed 40 years of age. So आपका जो VRS है वो इन्हीं दोनों कंडीशन में, या तो उस बंदे ने 10 years की सर्विस दे दी है तब कंपनसेशन एग्जेम्प्ट हो सकता है, या फिर ही हैज रीच्ड 40 years of age, इससे पहले नहीं हो सकता. Then it should be noted that the above criteria doesn't apply to the amount received by an employee of a public sector company under the voluntary separation scheme. So ये जो आपका है, this is only in case of voluntary retirement. PSUs के केस में when they are taking the voluntary separation scheme, उस केस में ये 10 years of service और completed 40 years of age applicable नहीं है. उसके केस में कुछ भी, अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है कि एम्प्लॉय इज वर्किंग अंडर पब्लिक सेक्टर कंपनी, सो उस केस में आपको ये कंडीशन नहीं देखनी है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल. देन थर्ड वन इज द स्कीम शुड अप्लाई टू ऑल द एम्प्लॉयज एक्सेप्ट डायरेक्टर्स. जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनको VRS नहीं मिलता है, इट इज ओनली टू द एम्प्लॉयज. तो एम्प्लॉय लेवल तक इट इज given as a it is given as an exemption. डायरेक्टर्स को नहीं मिलती है VRS में कोई भी exemption. Then the voluntary retirement or the voluntary separation scheme should have been drawn to result in an overall drop in the current strength of the employees. तो इसमें क्या होता है, VRS का मेन एम ही यही होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज को रिड्यूस कर रहे हो. आप खुद से बोल रहे हो कि हमें इतने एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है, और एम्प्लॉयर बेसिकली इसका बेनिफिट ही लेता है कि वो ये बोलता है कि मुझे जरूरत नहीं है, आप VRS ले लो, मैं आपको कंपनसेशन दे दूंगा. ठीक है. तो VRS इज यूजुअली डन in a way to reduce the workforce.
ठीक है, कि किसी तरीके से उसका अपना वर्कफोर्स लोड कम करना है, तब वो वीआरएस ऑफर देता है. Then the vacancy resulted from the voluntary retirement or voluntary separation scheme is not to be filled up. क्योंकि VRS दिया ही इसलिए जाता है voluntary retirement क्योंकि ज्यादा वर्कलोड होता है, वर्कलोड नहीं, ज्यादा वर्कफोर्स होता है, वर्कलोड कम होता है, वर्कफोर्स ज्यादा होता है. तो यूजुअली इसलिए देता है क्योंकि उसको लगता है एम्प्लॉयर को कि जरूरत नहीं है उस एम्प्लॉय की और उसकी जगह पे किसी की भी जरूरत नहीं है. ऑलरेडी वी आर इन एक्सेस ऑफ वर्कफोर्स और हमारा वर्कलोड इतना ज्यादा नहीं है, हमें इतने एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है. सो अगर आप दे रहे हो, जो भी वैकेंसी क्रिएट हो रही है तो वो फिल नहीं होनी चाहिए. एंड द लास्ट वन इज द वॉलंटरी रिटायरिंग एम्प्लॉय shall not be employed in another company concern belonging to the same management. इसका मतलब अगर एक कंपनी है, उसने किसी को वीआरएस दे दिया और वो रिटायर हो गया एम्प्लॉय, तो वो उसी मैनेजमेंट के अंडर किसी और कंपनी में नहीं जा सकता. फॉर एग्जांपल जो आपकी मैनेजमेंट थी उसकी कोई सब्सिडरी कंपनी थी या उसकी कोई होल्डिंग कंपनी थी या कुड बी एनीथिंग वेयर द मैनेजमेंट इज सेम. ठीक है, जो मैनेजर्स हैं, आप जो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट है, आपके ओनर्स हैं, दे शुड नॉट बी सेम. ठीक है, तो अगर वो सेम है तो उस केस में आपका वीआरएस एप्लीकेबल नहीं होगा. आपको रिटायरिंग जो एम्प्लॉय उसको दोबारा से एम्प्लॉय नहीं करना. अगर आपने एक बार उसको वीआरएस दे दिया और उसका कंपनसेशन एग्जेम्प्ट हो गया, तो वो दोबारा सेम मैनेजमेंट के अंदर नौकरी नहीं कर सकता, वो किसी और मैनेजमेंट के अंदर कर सकता है. ठीक है, तो कोई और कंपनी में सेम अगर है मैनेजमेंट, चाहे वो सब्सिडरी होगी, होल्डिंग होगी या कोई भी रिलेटेड उनकी कंपनीज हो गई, उसमें छोड़कर कहीं पे भी कर सकते हैं. सो दीज आर द गाइडलाइंस रिलेटेड टू दिस कंपनसेशन. सो इस क्वेश्चन से आपको ये समझ में आएगा. जस्ट रीड इट. Mr. X was working with DU and he takes VRS at the age of 47 years. He has worked for 18 years and his salary stood at rupees 21,000. Calculate VRS compensation which is taxable under the head salary. So सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि उसका एक्चुअल अमाउंट ऑफ VRS कितना बनता है जो DU को देना चाहिए, दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी, कितना बनना चाहिए. सो उसमें आपकी कंडीशन है, क्या कंडीशन है? एक तो 3 months की सैलरी उसको देनी है फॉर कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस, और दूसरा कहता है कि जो उसने कंप्लीट नहीं किया, जो बचे हुए हैं, उसकी मंथली सैलरी. और जो सैलरी क्या होगी आपकी? सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स. सिंस इन दिस केस नथिंग हैज बीन मेंशन, सो सैलरी आपकी 21,000 ही ली जाएगी. सो अमाउंट इक्वल टू 3 months ऑफ सैलरी विल बी 3 into 21,000 into 18 years of service करिए. 18 is your 11,34,000. Okay. नेक्स्ट आता है द अमाउंट इक्वल टू सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. ये आपकी 21,000 है इंटू 12, क्योंकि हर साल आपको 12 बार मिलनी थी ये सैलरी. तो 21,000 इंटू 12 इंटू, अब इसने 47 ईयर्स में वीआरएस ले लिया. वैसे नॉर्मल होती है आपकी 60, तो 60 माइनस 47 इज 30. यूजुअली जब भी क्वेश्चन में रिटायरमेंट एज नहीं मेंशन होगी तो यू अज्यूम एज टू बी 60. ठीक है, सो मल्टीप्लाई किया 13 से, सो आपका आंसर आया 32,76,000. नाउ द लोअर ऑफ दिस इज 11,34,000. सो द मैक्सिमम कंपनसेशन, ठीक है, द मैक्सिमम कंपनसेशन विच दिल्ली यूनिवर्सिटी कैन गिव टू दिस एम्प्लॉय इज 11,34,000. क्योंकि देखो ना, वो ये कहता है कि इन दोनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए. एक तो उसको जो अभी करंटली सैलरी मिल रही है उसको मल्टीप्लाई करो 3, और उसने कितने सर्विसेज कर दिए अब तक, मतलब पुराना, और एक होता है कि जो नहीं किया तो आगे वाला. ठीक है, उन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो कंपनसेशन दे देगी. नेक्स्ट है मैक्सिमम कंपनसेशन आ गया आपका. उसके बाद एग्जेम्पशन क्या कहती है? मैक्सिमम प्लस INR 5 लाख. ठीक है, सो इन दिस केस एक्चुअल अमाउंट इज 11,34,000, INR 5 लाख. सो मैक्सिमम आपका 5 लाख एग्जेम्प्टेड होगा और जो रेस्ट होगा दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी. तो अगर VRS का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले यू हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन व्हिच कैन बी गिवन बाय द एम्प्लॉयर. उसके बाद यू विल कैलकुलेट हाउ मच द अमाउंट कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दैट अमाउंट एंड लीव जो भी बचेगा दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी. सो क्लियर है VRS सबको? एनी डाउट्स टू एनीवन? कोई डाउट है किसी को तो प्लीज आस्क. ये तीनों आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने करा दिए हैं फिर भी आप लोगों की नॉलेज के लिए.
यूजुअली आपका प्रोविडेंट फंड जो है आपका पीपीएफ, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, एंड वो यूजुअली आपके क्वेश्चंस में एक पॉइंट बनकर ही आता है कि ही हैज कंट्रीब्यूटेड इतना टू द पीपीएफ, और वो आपका अंडर एटीसी आपका डिडक्ट हो जाता है। और आपका पेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका ग्रेचुइटी ट्रीटमेंट इज इम्पोर्टेंट। पेंशन ग्रेचुइटी तो आपका फुल इंपॉर्टेंट है, उसमें आप कोई भी पॉइंट मिस नहीं कर सकते। किसी को डाउट है किसी भी सेक्शन में? कल फिर हम लोग अलाउंसेस करेंगे।